वेलकम बैक गाइस। अपना लॉ का रिवीजन सीरीज चल रहा है। उसमें कंपनीज एक्ट में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 4 मेजर टॉपिक्स, दैट इज appointment of directors, next is meeting and powers of board, third was managerial remuneration, and the next was operation and mismanagement. In this particular video we are going to revise compromises, amalgamation and arrangements. तो इस चैप्टर को शॉर्ट में CAA हम लोग आगे से रिफ़र करेंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर 6 to 8 मार्क्स इन एग्ज़ाम रेगुलरली आस्क्ड है, एंड मैंने इसका सारा जो कॉन्सेप्ट्स है 12 पेज में उसको कवर करके रखा है। तो दिस विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स टाइम टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर, एंड कवरेज क्या है, सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 240 तक है। सबसे पहला अपना पार्ट है रेलिवेंट डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। क्या है रेलिवेंट डेफिनेशंस? चलो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। सेक्शन यहाँ पे 230 से 240 तक है। ओके, सबसे पहला क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? Compromise is a peaceful or willing settlement of a dispute by mutual adjustment. That is, peaceful or willing settlement of a dispute by mutual adjustments by the concerned parties. Arrangement क्या है? There is no disputes. Compromise क्या है? जहाँ पे dispute है but a mutual adjustment, peaceful or willing settlement by a mutual adjustment between the parties. Arrangements क्या है? There is no disputes but it modifies rights of parties, that is members or creditors. अपने वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पढ़ते थे ना, इंटरनल रिको में शेयर होल्डर्स कुछ राइट छोड़ते थे, क्रेडिटर्स कुछ राइट छोड़ते थे, वो है अरेंजमेंट। देयर इज नो डिस्प्यूट बट मॉडिफाइज राइट्स ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अमालगमेशंस। इट इंक्लूड्स अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन। देखो, इट इंक्लूड्स अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अमालगमेशन इज ब्लेंडिंग ऑफ 2 or more existing undertakings into one undertaking. अमालगमेशन क्या है? अमालगमेशन इज अ ब्लेंडिंग ऑफ 2 or more existing undertakings into one undertaking, right? Okay, next is amalgamation. Amalgamation दो टाइप का है, in the nature of merger and in the nature of purchase. In the nature of merger, जेन्युइन पूलिंग ऑफ अमलगमेशन। देखो, अमलगमेशन इन द मर्जर क्या है, यहाँ पे जेन्युइन पूलिंग ऑफ अमलगमेटिंग कंपनीज, द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज कंटिन्यूड। मतलब जो कंपनी अमलगमेट हो रहा है उनका जो बिजनेस है दैट इज कंटिन्यूड बाय द न्यू कंपनी। एंड इन द नेचर ऑफ परचेज क्या है, ओनली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर, द सेम बिजनेस इज नॉट कंटिन्यूड। तो इन द first case where in case of amalgamation in the nature of mergers, it is a genuine pooling of amalgamating companies, the business of transferor company is continued. In this case, pooling of interest method of accounting is applied, and in the second case the purchase method of accounting is applied. Pooling of method में क्या होता है, all assets and liabilities are taken over at book value, at least 90% face value of shareholders shall become equity shareholders of new company. क्या है, all asset liabilities are taken over at book value, at least 90% of face value of shareholders shall become equity shareholders of new company. Business of the transferor company is carried on. जो सेलिंग कंपनी है उनका बिजनेस चालू रहेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, कंसिडरेशन इज होनली इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। मतलब जो परचेजिंग कंपनी है वो कंसिडरेशन देगा सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, नो एडजस्टमेंट इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटी। ओके, परचेज मेथड में क्या होता है, वेयर एनी वन ऑफ द 5 पॉइंट्स आर नॉट मेट। यहाँ पे जो ये 5 पॉइंट है ना, ये पाँचों में से एक भी पॉइंट अगर वायोलेट हुआ, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अकाउंटिंग का क्या होता है, ऑल assets liabilities are taken over at fair values, business of transferor company is not carried on by the transferee company. So this is the basic background of this very chapter, and after that we will be starting with our sections. First is section 230, powers to compromise or make arrangement with creditors and members.
Okay. Power of tribunal to call for a meeting on an application filed for compromise arrangement. तो यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल फॉर अ मीटिंग ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट. यहाँ पे क्या है देखो, एक तो मेंबर और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स, क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, एंड लिक्विडेटर इन केस द कंपनी इज इनटू वॉलेंटरी लिक्विडेशन. तो यहाँ पे कौन कौन कर सकता है, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, एनी क्लास ऑफ देम और लिक्विडेटर इन केस ऑफ वॉलेंटरी लिक्विडेशन. तो ये सारे लोग, ये जो सारे लोग हैं, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, एनी क्लास और लिक्विडेटर इन केस ऑफ वॉलेंटरी लिक्विडेशन, ये सारे लोग क्या है, दे प्रपोजेस एनी कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट. तो ये लोग कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट प्रपोज करते हैं, मतलब दे वांट अ कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी. इन दैट केस एप्लीकेशन वो लोग करेंगे. तो एप्लीकेशन यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के पास कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए एप्लीकेशन भेजा जाता है. एप्लीकेशन कौन कर सकता है, कंपनी, क्रेडिटर, मेंबर और लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन करेंगे एंड ट्रिब्यूनल में पास एन ऑर्डर फॉर मीटिंग ऑफ मेंबर्स और क्रेडिटर्स. तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इट में पास एन ऑर्डर फॉर मीटिंग ऑफ मेंबर्स और क्रेडिटर्स, राइट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज डिस्क्लोजर्स बाय द एप्लीकेंट. ये जो डिस्क्लोजर देना होगा बाय द एप्लीकेंट, दैट शैल बी बाय एफिडेविट. ओके, डिस्क्लोजर्स बाय द एप्लीकेंट बाय एफिडेविट. ऑल मटेरियल फैक्ट्स, एग्जाम्पल लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट, पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स. क्या क्या देना पड़ेगा, ऑल मटेरियल डिस्क्लोजर्स बाय द एप्लीकेंट बाय एफिडेविट. उनको डिस्क्लोजर में क्या क्या देना पड़ेगा, ऑल मटेरियल फैक्ट्स, एग्जाम्पल लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट, पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स और इन्वेस्टिगेशंस ऑन द कंपनी. दूसरा क्या है, इफ एनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, if any reduction of share capital proposed in compromise or arrangement, वो डिटेल देना पड़ेगा. थर्ड इज एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग. इन दैट केस कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 75% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू, ये भी देना पड़ेगा. इफ एनी स्कीम, मतलब इफ the compromise or arrangement involves any scheme of corporate debt restructuring, in that case consent of not less than 75% of secured creditors in value का consent होना चाहिए. अभी इसमें देखो क्या क्या चाहिए, creditors responsibility statement, safeguards for protection of interest of creditors. एक तो एनी, जहाँ पे एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का बात चल रहा है, वहाँ पे कॉन्सेंट ऑफ नॉट लेस देन 75% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू एंड क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, सेफगार्ड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन लिक्विडिटी टेस्ट, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग इज एज पर RBI गाइडलाइंस. तो and last point is a valuation report with respect to shares property asset by a registered valuer. यहाँ पे कुछ चीज़ें देना पड़ेगा. एक तो क्या है, valuation report with respect to shares property assets by a registered valuer देना पड़ेगा. corporate debt restructuring is as per RBI guidelines. auditors report on liquidity test, क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, सेफगार्ड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स. ये सारा चीज़ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में देना पड़ेगा. एंड इफ एनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल प्रपोज्ड इन कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट, प्लस एनी मटेरियल फैक्ट्स, एग्जाम्पल लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट, पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, इन्वेस्टिगेशंस ऑन द कंपनी. ये सारा चीज़ डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा बाय द एप्लीकेंट along with application by affidavit, right. Okay, next thing is notice of meeting conducted on order of tribunal. अभी ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करेगा टू कंडक्ट मीटिंग ऑफ creditors or members, in that case the company shall give the notice of such meeting
कंपनी किसको देगा नोटिस? कंपनी, यहाँ पे देखो कंपनी है, कंपनी नोटिस देगा टू क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड सेक्टोरल रेगुलेटर्स। ये सारा पर्सन को कंपनी ये मीटिंग का नोटिस प्रोवाइड करके चलेगा। क्रेडिटर्स, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, मेंबर्स, क्लास ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, सेक्टोरल रेगुलेटर्स। अभी यहाँ पे सेक्टोरल रेगुलेटर्स कौन कौन है? सेक्टोरल रेगुलेटर्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आरबीआई, सेबी, आरओसी, स्टॉक एक्सचेंज, ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इफ अमालगमेशन इज इन्वॉल्व, ये सबको हम लोग बोलेंगे सेक्टोरल रेगुलेटर्स। एंड ये जो नोटिस देना पड़ेगा ना, दैट नोटिस मस्ट बी सर्व्ड इंडिविजुअली एट द रजिस्टर्ड एड्रेस विद द कंपनी। और सेक्टोरल रेगुलेटर्स को, यहाँ पे जो सेक्टोरल रेगुलेटर्स का बात चल रहा है, सेक्टोरल रेगुलेटर्स को ये नोटिस का कॉपी इसीलिए दिया जाता है टू इनवाइट एनी रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ नोटिस। मतलब कंपनी सेक्टोरल रेगुलेटर को इन्फॉर्म करके चलेगा कि ऐसा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का जो मीटिंग है उसके लिए नोटिस भेजा जा रहा है टू इनवाइट एनी रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस, राइट। तो ये जो नोटिस है, नोटिस में देयर आर सर्टेन एनेक्स्चर्स टू द नोटिस। अभी इसमें क्या क्या देना पड़ेगा? देखो एनेक्स्चर्स को अच्छे से देखते हैं कि नोटिस में भला क्या क्या देना पड़ेगा। एक तो है डिटेल्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट इफ एनी, इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स, की मैनेजरियल पर्सनल, प्रमोटर्स, डिबेंचर होल्डर्स। एक तो देखो डिटेल्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट इफ एनी, इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स, की मैनेजरियल पर्सनल, प्रमोटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, देन इफेक्ट ऑन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एंड देन अदर मैटर्स एज में बी प्रेस्क्राइब। ये तो सरकारी पॉइंट है, हर जगह पे होता है अदर मैटर्स एज में बी प्रेस्क्राइब। वो क्या प्रेस्क्राइब्ड है वो हम लोगों को अभी तक नहीं पता है भाई। ऐसा ही है ना, आप लोग भी सोचते होंगे। चलो नेक्स्ट थिंग इज एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस। अभी ये जो नोटिस है उसका एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को देना पड़े। कहाँ पे देना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट ऑफ नोटिस? एक तो वेबसाइट ऑफ द कंपनी, and if the company is listed then security exchange where listed, and also देखो वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड इफ लिस्टेड देन सिक्योरिटी एक्सचेंज को एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, एंड ऑल्सो इन वन वर्नाकुलर एंड वन इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। वन वर्नाकुलर and one English newspaper circulated in the district. Tribunal may cancel the meeting if at least 90% of creditors in value confirm by affidavit to the scheme of compromise or arrangement. ये एक special point है। Tribunal may cancel the meeting if at least 90%. Tribunal may cancel the meeting if at least 90% of creditors in value confirm by affidavit to the scheme of compromise or arrangement। मतलब 90% वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स ने ऑलरेडी उसको अप्रूव कर दिया है, तो और मीटिंग का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे की पॉइंट क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% ऑफ क्रेडिटर्स इन वैल्यू has already approved compromise or arrangement, hence no further meeting is required at all। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है जहाँ पे मीटिंग कैंसिल कर सकता है इंस्टीट्यूट। Vote to the adoption of compromise or arrangement. Persons to whom the notice is sent can vote through. तो ये जो persons को notice भेजा गया, they can vote through themselves by proxy or postal ballot within a period of 30 days from date of notice। 30 days के अंदर अंदर ये सारे मोड में वो लोग वोटिंग डाल सकते हैं। Objection to the compromise or arrangement can be made by persons holding greater than or equal to 10% of शेयर होल्डिंग। देखो
ऑब्जेक्शन कौन रेज कर सकता है? पर्सन होल्डिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ शेयर होल्डिंग और आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डेट्स। अगर एक तो मेंबर्स क्या कर सकता है? पर्सन, देखो ऑब्जेक्शन यहाँ पे है बाय मेंबर्स और नीचे वाला है बाय क्रेडिटर्स। तो ऊपर से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना कि मेंबर्स और क्रेडिटर्स, तो ऑब्जेक्शन भी वही दोनों लोग कर सकते हैं। मेंबर्स के केस में if the member is holding greater than or equal to 10% of shareholding or in case of creditors outstanding debt of greater than or equal to 5% of total outstanding debt, binding order of tribunal where 3/4 in value of creditors or members agree to compromise or arrangement। ये बड़ा ही important है, where 3/4 in value of creditors or members agree to compromise or arrangement, then compromise or arrangement is sanctioned by tribunal by an order। compromise or arrangement is sanctioned by tribunal by an order। अब ये जो order tribunal पास करेगा, that order, देखो ये 3/4 in value of creditors में, ये कहाँ पे होगा? ये मीटिंग में, जो मीटिंग होगा मीटिंग में ये लोग वोट करेंगे। तो 3/4 in value अगर वहाँ पे अप्रूवल मिल गया, in that case tribunal will sanction the compromise arrangement and that order of tribunal is binding on all, that is binding on all, binding on the company, binding on creditors, binding on members, binding on liquidator in case of voluntary winding up। then particulars to be stated in the order। अभी ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर देगा वो ऑर्डर में कुछ कुछ पर्टिकुलर्स देना पड़ेगा। एक तो प्रोटेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स must be ensured if compromise or arrangement results into variation of shareholder right, it shall comply with section 48। क्या देखो यहाँ पे particulars to be stated in the order क्या है? protection of any class of creditors must not be undermined if the compromise or arrangement results into variation of shareholder right, it shall comply with section 48। if compromise or arrangement involves any proceedings pending before board for financial or industrial reconstruction, देखो if compromise or arrangement involves any proceedings pending before board for financial or industrial reconstruction for sick companies, वो भी चेक करना होगा। अदर मैटर्स इंक्लूडिंग एग्जिट ऑफर टू, देखो एग्जिट ऑफर टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, अदर मैटर्स इंक्लूडिंग एग्जिट ऑफर टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, इसको देखना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को देखना पड़ेगा। इन केस द कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट रिजल्ट्स इनटू वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, इट शैल कंप्लाई विद सेक्शन 48। तो इतना सारा बात देखना पड़ेगा। देन फ्यू स्पेशल पॉइंट्स, नो ऑर्डर फॉर कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल इफ अ सर्टिफिकेट बाय द कंपनी ऑडिटर हैज बीन फाइल्ड विद द ट्रिब्यूनल विद रिस्पेक्ट टू कंप्लाई विद AS इंड AS prescribed under section 133। this is a very important clause। no order for compromise or arrangement shall be passed by tribunal if a certificate by the company's auditor has not been filed with the tribunal with respect to compliance with AS or IND AS prescribed under section 133। तो जब तक कंपनी ऑडिटर एक, देखो until and unless the company's auditor has not filed a certificate with respect to compliances with AS or IND AS to the tribunal cannot pass an order for compromise or amalgamation। The order of the tribunal to be filed with register within 30 days of receipt of order by the company। यहाँ पे कंपनी के ऊपर obligation है, the company must file the order of the tribunal with the register of companies within 30 days from receipt of that order। No compromise or arrangement with respect to buyback shall be approved unless the buyback is under section 68। क्या बोल रहे हैं? No compromise or arrangement with respect to buyback shall be approved unless the buyback is under section 68, मतलब buyback shall comply with section 68। then any aggrieved party may file an application to tribunal in the event of any grievance with respect to takeover offer of companies other than listed companies। क्या बोल रहा है? Any aggrieved party may file an application to the tribunal in the event of any grievance with respect to takeover offer of companies other than listed companies।
Generally, reduction of capital requires special resolution. Generally, reduction of capital, that is section 66. Generally, reduction of capital requires special resolution, but a compromise or arrangement resulting into reduction of capital does not require special resolution. एंड सेक्शन ये जो देखो जनरली रिडक्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स स्पेशल जनरली reduction of capital requires special resolution as per section 66, but where a compromise or arrangement resulting into reduction of capital, it does not require a special resolution. Section 66 need not be followed. उसके बाद section 231 power of tribunal to enforce compromise or arrangement. देखो tribunal has the power to supervise the implementation of tribunal has certain power to enforce compromise arrangement. It has the power to supervise the implementation of compromise or arrangement and at any time give directions, make modifications. ट्रिब्यूनल क्या कर सकते हैं? इट हैज़ द पावर टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड एट एनी टाइम इट मे गिव डायरेक्शंस और मेक मॉडिफिकेशंस इन कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. तो ट्रिब्यूनल के पास दो पावर है. इट हैज़ द पावर टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एंड एट एनी टाइम इट मे गिव डायरेक्शन and make modifications in compromise or arrangement for proper implementation. If the tribunal is satisfied that the compromise or arrangement cannot be implemented satisfactorily with or without modifications and the company is unable to pay its debts as per the scheme, it may make an order of winding up. Okay, this is related to winding up order by tribunal. कब होता है? If the tribunal is satisfied that the compromise or arrangement cannot be implemented satisfactorily with or without modifications and the company is unable to pay its debts as per the scheme, it may make an order of winding up. Next is section 232, mergers and amalgamation of companies, where an application made to tribunal under section 230 and such compromise or देखो where an application made to the tribunal under section 230 and such compromise or arrangement involves a scheme of reconstruction involving merger and acquisition. क्या है? First point is where an application made to tribunal under section 230 and such compromise or arrangement involves a scheme of reconstruction involving merger and acquisition and where whole or part of undertaking. देखो दो बातें हैं. Where an application has already been forwarded to tribunal under section 230 for compromise arrangement and compromise or arrangement involves a scheme of reconstruction involving merger and acquisition, and दूसरा point where whole or part of any undertaking, property, liability of a company is required to be transferred to another company. ये दोनों केस में एक तो जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज अमलगमेशन के एप्लीकेशन किए हुए अंडर सेक्शन 230 एंड इट इन्वॉल्व्स अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग मर्जर एक्विजिशन, एंड दूसरा केस वेयर होल और पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग एनी प्रॉपर्टी लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस. ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स फॉर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स एज द केस में बी. ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, नोटिस किसका? ये नोटिस मिलेगा क्रेडिटर्स से या तो मेंबर्स से. ऑन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस द ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स फॉर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स एज द केस में बी. ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम टू बी सर्कुलेटेड. अभी ये जो प्रपोज्ड जो स्कीम है ना, ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम मतलब ड्राफ्ट ऑफ मर्जर और अमलगमेशन. तो ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज स्कीम टू बी सर्कुलेटेड. ड्राफ्ट फर्स्ट पॉइंट इज ड्राफ्ट ड्रॉन अप एंड अडॉप्टेड बाय डायरेक्टर्स. फर्स्ट पॉइंट इज ड्राफ्ट ड्रॉन अप एंड अडॉप्टेड बाय डायरेक्टर्स ऑफ मर्जिंग कंपनीज. First point is the draft is drawn up and it is adopted by the directors of merging companies. Second point, a copy needs to be filed with the registrar.
फर्स्ट पॉइंट क्या है, द ड्राफ्ट इज ड्रॉन एंड adopted बाय द डायरेक्टर्स ऑफ मर्जिंग कंपनीज, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, अ कॉपी नीड्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर, ये सेकंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट इज अ रिपोर्ट ऑफ द मर्जिंग कंपनीज, a report of the merging companies with respect to effect on shareholder, key managerial personnel, promoters, creditors. Third point is a report of the merging companies with respect to effect on shareholder, key managerial personnel and promoters, creditors. A report by a registered valuer, a report of the merging companies with respect to, देखो तीन अभी दो रिपोर्ट है, अ रिपोर्ट ऑफ द मर्जिंग कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर, की मैनेजर पर्सन, प्रमोटर्स, क्रेडिटर्स, एंड अ रिपोर्ट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर प्लस सप्लीमेंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द, ओके यहाँ पे देखो मैं ये ना थोड़ा सा आप लोगों को मेमोराइज करने में दिक्कत हो सकती है. ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज स्कीम टू बी सर्कुलेटेड, दैट इज ड्राफ्ट ऑफ द मर्जर अमलगमेशन. द ड्राफ्ट नीड्स टू बी ड्रॉन अप एंड इट इज़ अडॉप्टेड बाय डायरेक्टर्स ऑफ मर्जिंग कंपनीज, फर्स्ट स्टेप. दूसरा स्टेप है अ कॉपी नीड्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर, दूसरा स्टेप हो गया. A report of the merging companies with respect to effect on shareholder, key managerial personnel, promoters, creditors, then a report by a registered valuer, then a supplementary financial statement if the financial statement is greater than 6 months older. तो ये सारा चीज़ सर्कुलेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल. द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल मेंशंस फॉलोइंग थिंग्स: डेट ऑफ transfer, that is appointed date. Order of the tribunal, order क्या है, order with respect to merger and acquisition. Order of the tribunal shall state date of transfer. एक तो कौन सा डेट में, that is date of transfer, that is appointed date. दूसरा है ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज परचेज कंसिडरेशन. तीसरा है लीगल प्रोसीडिंग्स टू बी कैरिड ऑन बाय ट्रांसफरी कंपनी. जो भी ट्रांसफरर कंपनी का लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहा है ना, उसको ट्रांसफरी कंपनी भी कैरी ऑन करेगा. फोर्थ थिंग इज ट्रांसफरर कंपनी डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप. जो अपना ट्रांसफरर मतलब जो सेलिंग कंपनी है, दैट विल बी डिसॉल्व विदाउट वाइंडिंग अप. फिफ्थ पॉइंट इज प्रोविजन फॉर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. जो शेयर होल्डर्स एग्री नहीं कर रहे हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए क्या प्रोविजन बनाया जा रहा है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. देखो एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी दे विल बी शिफ्टेड टू ट्रांसफरी कंपनी. सेवेंथ पॉइंट इज वेयर ट्रांसफरर कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी. मतलब सेलिंग कंपनी इज लिस्टेड कंपनी एंड परचेजिंग कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी. देन द ट्रांसफरी कंपनी शैल रिमेन अनलिस्टेड अंटिल इट बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी. मतलब ऑटोमेटिकली वो लिस्टेड बन नहीं जाएगा. जब तक वो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करेगा तब तक वो अनलिस्टेड बना रहेगा. ओके. देन नो कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग मर्जर एक्विजिशन. नो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग मर्जर एक्विजिशन कैन बी सैंक्शनड बाय ट्रिब्यूनल अनलेस can be no compromise arrangement involving merger amalgamation can be sanctioned by the tribunal unless a certificate by the company's auditor with respect to compliance with AS Ind AS prescribed under section 133 has been filed with the tribunal. ये तो पॉइंट ऊपर भी हम लोग ने पढ़ा. नेक्स्ट इज every company shall file a copy of order of tribunal to the register within a period of 30 days. Every company shall file a copy of order of tribunal to the register within a period of 30 days from receipt of notice until the completion of scheme. Until the completion of the scheme shall file a statement with register each year. The company until and unless देखो जब तक ये amalgamation scheme complete नहीं हो जाता तब तक the company shall file a statement with the registrar each year duly certified. देखो तब तक के लिए क्या करेगा, द कंपनी नीड्स टू फाइल अ स्टेटमेंट विद द रजिस्टर ईच ईयर ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. देखो ड्यूली क्या करेगा, until the completion of scheme it shall file a statement with the registrar each year duly certified by a chartered accountant, a cost accountant, a company secretary in practice, stating that the scheme is being complied
with accordance with the order of tribunal. मतलब ट्रिब्यूनल को ये भरोसा दिलाएगा कि the scheme is being complied, the scheme is being complied with the orders of the tribunal. If the company fails to report to the register, मतलब ये जो रिपोर्टिंग है कंपनी का जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, एक तो देखो फर्स्ट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है एवरी कंपनी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल टू द रजिस्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days एंड अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द स्कीम इट शैल फाइल अ स्टेटमेंट विद द रजिस्टर ईच ईयर ड्यूली सर्टिफाइड बाय CSCMA इन प्रैक्टिस स्टेटिंग दैट द स्कीम इज बीइंग कंप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. इफ द कंपनी फेल्स देन कंपनी प्लस ऑफिसर दोनों के ऊपर पेनल्टी है. पेनल्टी कितना है 20,000 प्लस ₹1000 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट. मिनिमम 20,000 प्लस ₹1000 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट. इट कैन गो अप टू मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़. अभी क्या है एग्जिस्टिंग कंपनी है, इट ट्रांसफर प्रॉपर्टी और लायबिलिटी टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी. ये केस में मर्जर बाय एब्जॉर्प्शन होगा. अभी क्या है एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, इट ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी और लायबिलिटी टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी, इट इज़ अ मर्जर बाय एब्जॉर्प्शन. दूसरा केस क्या है एन एग्जिस्टिंग कंपनी इट ट्रांसफर प्रॉपर्टी लायबिलिटी टू अ न्यू कंपनी, देन मर्जर बाय फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी. एग्जिस्टिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी लायबिलिटी तो मर्जर बाय एब्जॉर्प्शन, नो न्यू कंपनी. एग्जिस्टिंग कंपनी अगर न्यू कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी लायबिलिटी, इन दैट केस मर्जर बाय फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी. Next is section 235, power to acquire shares of dissenting shareholders where scheme is approved by majority shareholders. Power to acquire shares of dissenting shareholders where the scheme is approved by majority shareholders. Basic requirements for acquisition of shares. The scheme involving transfer of shares to another company has been approved by, देखो द स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू अनदर कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड बाय नॉट लेस देन 9/10 ऑफ वैल्यू, नॉट लेस देन 9/10 ऑफ वैल्यू इन शेयर्स. द स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू अनदर कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड बाय नॉट लेस देन 9/10 ऑफ वैल्यू इन शेयर्स. दूसरा पॉइंट क्या है द अप्रूवल शैल बी रिसीव्ड विद इन 4 months आफ्टर मेकिंग एन ऑफर. जहाँ पे ये जो कंप्रोमाइज और अमालगमेशन का ऑफर है, the scheme involving transfer of shares to another company has been approved by at least 9/10 of value of shares, and the approval and this above approval 9/10 of value, this approval shall be received within 4 months after making an offer. Within 4 months after making an offer ये approval आ जाना चाहिए. तीसरा पॉइंट क्या है shares already held with purchasing company. Shares already held with purchasing company is not counted for this purpose. मतलब यहाँ पे क्या है देखो, जहाँ पे अमालगमेशन प्रपोज हो रहा है, समझो कंपनी ए ने कंपनी बी को ऑफर दिया है कि वो उसका शेयर परचेज करेगा, बट अभी समझो उसको कंट्रोल लेने के लिए टोटल शेयर चाहिए 51%, बट उसके पास ऑलरेडी 10% इन्वेस्टमेंट है पहले से शेयर्स का. इन दैट केस शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड विथ परचेजिंग कंपनी इज नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पज. तो उतना जो पोर्शन का शेयर है ना, जो 10% का शेयर है, वो शेयर ये 9 मतलब वो 10% शेयर के लिए ये 9/10 वाला वैल्यू का अप्रूवल नहीं चाहिए. तो वही बोल रहे हैं द ट्रांसफरी कंपनी शैल एक्सप्रेस डिजायर टू एक्वायर रिमेनिंग शेयर विद इन 2 months आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 months. मतलब यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है, द ट्रांसफरी कंपनी मतलब द परचेजिंग कंपनी शैल एक्सप्रेस इट्स डिजायर टू एक्वायर रिमेनिंग शेयर्स विद इन 2 months आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 months एंड इट शैल गिव नोटिस टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है. तो क्या क्या चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स शेयर्स. द स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू अनदर कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट 9/10 ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स. द अप्रूवल शैल बी रिसीव्ड विद इन 4 months after making an offer. Shares already held with purchasing company not counted for the purpose. The transferee company shall express desire to acquire remaining shares within 2 months after expiry of 4 months and it shall give notice to dissenting shareholders. Fourth point क्या है, unless dissenting shareholders makes application to tribunal
the transferee company shall acquire the shares within 1 month from the date of notice. तो ये जो ऊपर जो नोटिस दे रहा है ना, अनलेस देखो जहाँ पे डिसेंटिंग शेयर होल्डर ने कोई एप्लीकेशन कर दिया ट्रिब्यूनल में, तब तो कंपनी एक्वायर नहीं कर सकता जब तक उसका प्रोसीडिंग ख़त्म ना हो. बट जहाँ पे डिसेंटिंग शेयर होल्डर ने ट्रिब्यूनल को कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है, देन द ट्रांसफरी कंपनी शैल एक्वायर द शेयर्स विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस. ठीक है. Fifth point is where dissenting shareholders goes to tribunal and the tribunal has not made any order, goes to tribunal and the tribunal has not made any order within 1 month. Tribunal has not made any order within 1 month, it is deemed acceptance of tribunal. In that case also transferee company may acquire the shares. Then transferor company shall register the shares in the name of transferee company. मतलब ट्रांसफरर कंपनी मतलब क्या, सेलिंग कंपनी जिसका शेयर है. ट्रांसफरर कंपनी शैल रजिस्टर द शेयर्स इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एंड विद इन 1 month इन्फॉर्म टू द शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पे जब सारा मैटर सुलझ जाएगा उसके बाद द ट्रांसफरर कंपनी शैल रजिस्टर द शेयर्स इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एंड विद इन 1 month इट शैल इन्फॉर्म टू द शेयर होल्डर्स. उसके बाद ट्रांसफरर कंपनी शैल कीप द कंसिडरेशन, मतलब जो अपना ट्रांसफरी कंपनी है ये कंसिडरेशन दे देगा ट्रांसफरर कंपनी को. कब देगा, जब ट्रांसफरर कंपनी शैल रजिस्टर, मतलब ट्रांसफरर कंपनी जब शेयर्स उसके नाम पे रजिस्टर कर देगा तब ये कंसिडरेशन दे देगा. देन ट्रांसफरर कंपनी शैल कीप द कंसिडरेशन इन अ separate bank account. Transferor company shall keep the consideration in a separate bank account and all the shareholders shall be paid, all the shareholders shall be paid within a period of 60 days. तो गाइज ये इसमें बहुत सारा टाइम लिमिट आ गया, तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं. सेक्शन 235 पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स वेयर स्कीम इज अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स. The scheme involving transfer of shares to another company has been approved by not less than 9/10 of value in shares. The approval shall be received within 4 months after making an offer. Shares already held with purchasing company is not counted for this purpose. The transferee company shall express its desire to acquire remaining shares within 2 months after the expiry of 4 months and give a notice to dissenting shareholders. Unless dissenting shareholders make an application to tribunal, the transferee company shall acquire the shares within 1 month from the date of notice. Where dissenting shareholders goes to the tribunal and the tribunal has not made any order within 1 month, it is deemed acceptance by tribunal. Transferor company shall register the shares in the name of transferee company and within 1 month it shall inform to the shareholders. Transferor company shall keep the consideration in a separate bank account and all the shareholders shall be paid within a period of 60 days. Next section is section 236 purchase of minority shareholding. यहाँ पे क्या है, purchase of minority shareholding. ऊपर क्या था, purchase of dissenting shareholding. ओके ये वाला सेक्शन क्या बोलता है, एन एक्वायरर. देखो एन एक्वायरर बिकम रजिस्टर्ड होल्डर, मतलब ये सेक्शन कब एप्लीकेबल है, बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन, शेयर एक्सचेंज, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज. मतलब बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन, शेयर एक्सचेंज और कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज, ये 3 केस में क्या बोल रहा है, बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन, शेयर एक्सचेंज एंड कन्वर्जन ऑफ शेयर्स. इफ मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट से एरो यहाँ पे आता है, by virtue of any amalgamation, share exchange or conversion of shares, if an acquirer become registered holder of greater than equal to 90% of issued equity share capital, registered holder of greater than equal to 90% of issued equity share capital, or any person or group of person become registered holder of greater than 90% of issued equity share capital. यहाँ पे क्या है, an acquirer और यहाँ पे एनी, देखो एन एक्वायरर कंपनी और यहाँ पे एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन.
तो ये दोनों केस में इट शैल नोटिफाई द कंपनी ऑफ देयर इंटेंशन टू बाय रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स। जो 90% से ऊपर ऑलरेडी मिल गया है उसको, कौन सा रीजन से मिला है? बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन, शेयर एक्सचेंज और कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज। तो ही बिकेम रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 90% इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल। इन दैट केस it shall notify the company of their intention to buy remaining equity shares at a price predetermined on the basis of valuation by registered valuer, at a price predetermined on the basis of valuation by a registered valuer. Minority shareholder may suo motu offer to sell majority, देखो minority shareholder may also suo motu offer to sell देयर शेयर्स टू मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। क्यों? उनको डर लग रहा है भाई, अभी उनका बात सुना नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक सेल कर के निकल जाते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करते हैं। देन मेजोरिटी शेयर होल्डर शैल डिपॉजिट द अमाउंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर्स इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। देखो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, इट शैल डिपॉजिट द अमाउंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर्स इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ऑपरेटेड बाय द कंपनी फॉर एटलीस्ट 1 year for at least 1 year for payment. Such an amount shall be disbursed within 60 days. तो क्या है? एक तो मेजोरिटी शेयर होल्डर जो प्राइस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो उस बेसिस पे नोटिफाई कर देगा इंटेंशन, एंड आफ्टर दैट मेजोरिटी शेयर होल्डर शैल डिपॉजिट द अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स एज डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ऑपरेटेड बाय द कंपनी फॉर एट लीस्ट 1 year। फॉर एट लीस्ट, यहाँ पे जो अमाउंट डिपॉजिट करेगा ना, फॉर एट लीस्ट 1 year फॉर पेमेंट, सच एन अमाउंट शैल बी डिसबर्स्ड विद इन 60 days। विद इन 60 days कब से? डिसबर्स्ड विद इन 60 days फ्रॉम अ क्लेम। क्लेम के 60 days के अंडर डिसबर्स हो जाना चाहिए। द कंपनी शैल एक्ट एज एन एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? where minority, that is not less than 75% or more, where minority के अंदर not less than 75% or more of total minority। देखो ये बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है। where minority, अभी माइनॉरिटी में कौन है? where minority, उसमें भी नॉट लेस देन 75% और मोर ऑफ टोटल माइनॉरिटी, वेयर माइनॉरिटी नेगोशिएट्स फॉर एनी हायर वैल्यू, मेजोरिटी शेयर होल्डर शैल शेयर द एडिशनल कंपेंसेशन टू माइनॉरिटी ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। दिस प्राइस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल माइनॉरिटी शेयर्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वेयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर नेगोशिएट्स, अभी कौन नेगोशिएट कर सकता है? एट नॉट लेस देन 75% और मोर ऑफ टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। Where minority negotiates for any higher value of shares, majority shareholder shall share additional compensation to minority on a pro rata basis. Additional compensation for shares on a pro rata basis. This price will be applicable to all minority shares. On failure of acquisition of shares, अभी majority ने वादा किया है कि ले लेंगे बट ले नहीं पाए। ऑन फेलियर टू एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, वेयर मेजोरिटी फेल्स टू एक्वायर फुल माइनॉरिटी शेयर्स, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन कंटिन्यूज टू अप्लाई इवन दो द शेयर्स आर डीलिस्टेड एंड द पीरियड ऑफ 1 year हैज बीन elapsed। तो ये प्रोविजन तब भी एप्लीकेबल है, मतलब मेजोरिटी ये मतलब वेयर द मेजोरिटी फेल्स टू एक्वायर द फुल माइनॉरिटी शेयर्स, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन कंटिन्यूज टू अप्लाई। कंटिन्यूज टू अप्लाई का क्या मतलब है? मतलब मेजोरिटी उसके बाद भी परचेज कर सकता है, इवन दो द शेयर्स आर डीलिस्टेड एंड द पीरियड ऑफ 1 year हैज elapsed, उसके बाद भी कर सकता है। शेयर्स आर डीलिस्टेड एंड द पीरियड ऑफ 1 year हैज बीन elapsed, उसके बाद भी मेजोरिटी खरीद सकता है। मेजोरिटी हैज स्टिल द राइट टू परचेज माइनॉरिटी शेयर्स। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 237, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इफेक्ट अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये बड़ा ही ईजी सा एक सेक्शन है, इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। Central government may, by an order in the official gazette, may provide for amalgamation of 2 or more companies in public interest। तो public interest में CG कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द ट्रांसफरर कंपनी शैल बी कंटिन्यूड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। ये तो सरकारी पॉइंट है। देन
मेंबर क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर, क्या बोल रहे हैं, एवरी मेंबर क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शैल हैव द सेम राइट्स इन द अमालगमेटेड कंपनी. एवरी मेंबर क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शैल हैव द सेम राइट्स इन द अमालगमेटेड कंपनी. नेक्स्ट, any party aggrieved by the scheme can file an appeal to the tribunal within 30 days from publication in official gazette. Any party aggrieved by the scheme by central government can file an appeal to the tribunal within 30 days from publication in official gazette. No order can be made unless a copy of draft sent to companies. देखो, no order यहाँ पे क्या बात है, पावर ऑफ सीजी टू इफेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट. तो सीजी एनसीएलटी को करेगा, एनसीएलटी नो ऑर्डर कैन नॉट, देखो यहाँ पे क्या है, एनसीएलटी कैन नॉट पास ऑर्डर अनलेस, ये बात है. तो सीजी एनसीएलटी के पास जाएगा, एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा, यही ऑर्डर का बात चल रही है. नो ऑर्डर कैन बी मेड अनलेस a copy of draft order sent to the companies. Next point is time for appeal has elapsed or appeal disposed of. मतलब first point is the copy of draft order has been sent to all the companies. टाइम फॉर अपील हैज़ बीन elapsed, मतलब अपील करने का टाइम चला गया है, एक तो वो हो सकता है, नहीं तो जहाँ पे अपील हुआ है दैट अपील हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ. तीसरा है CG has made the required modification in the draft order as per suggestions of companies. CG, central government, has made the required modification in the draft order as per the suggestion of the companies. Copy of draft order to be laid before each house of parliament as soon as it is published in official gazette. Copy of the draft order, क्या बोल रहा है, copy of the draft order to be laid before each house of parliament. Copy of the draft order to be laid before each house of parliament, that is lower house and upper house, as soon as it is published in the official gazette. Section 238, registration of offer of schemes involving transfer of shares. Registration of offer of schemes involving transfer of shares. Every such offer shall contain a statement on behalf of the transferee company disclosing steps taken to ensure that, देखो क्या बोल रहा है, एवरी सच ऑफर शैल कंटेन अ स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी डिस्क्लोजिंग स्टेप्स टेकन टू एंश्योर दैट नेसेसरी कैश विल बी अवेलेबल. एवरी सच सर्क्यूलर शैल बी प्रेजेंटेड टू, अबे ये क्या हो गया है, एवरी सच सर्क्यूलर शैल बी प्रेजेंटेड टू registrar for registration. No such circular shall be issued unless it is registered. The director who fails to register but issues circular is liable for a penalty of 1 lakh. देखो छोटा सा सेक्शन है, एवरी सच, यहाँ पे बात क्या चल रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर of schemes involving transfer of shares. Every such offer shall contain a statement on behalf of the transferee company disclosing steps taken to ensure that necessary cash will be available. Every such circular involving transfer of shares shall be presented to registrar. Every such circular involving transfer of shares, तो क्या बोल रहा है, एवरी सच सर्क्यूलर इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स शैल बी प्रेजेंटेड टू द रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन. नो सच सर्क्यूलर शैल बी इशूड अनलेस इट इज रजिस्टर्ड. एंड नीचे वाला पॉइंट में, द डायरेक्टर हु फेल्स टू रजिस्टर बट इशूज अ सर्क्यूलर इज लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ ₹1 lakh. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 239, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पेपर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनीज. सरकारी सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, तुरंत खत्म कर देंगे. सेक्शन 239, preservation of books of accounts and papers of amalgamated companies. Books and papers of a company which is amalgamated or whose shares has been acquired. देखो, books and papers of a company which is amalgamated or whose shares have been acquired shall not dispose any of the documents without prior approval of CG. Before granting such an approval, CG appoints a person to examine the books of accounts and papers
to determine whether any offense has been committed by the company and its officers. क्या है? Books and papers of a company which is amalgamated or whose shares have been acquired shall not dispose any of the documents without prior approval of CG. Before granting such approval, CG appoints a person to examine the books of accounts and papers to determine whether any offense has been committed by the company and its officers. Then section 240, liability of officers with respect to any offense made prior to merger, acquisition etc. shall continue even after. ये तो छोटा सा एकदम है, इसमें एक्सप्लेनेशन देने का कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही है. एनी लायबिलिटी, देखो ये क्या बोल रहा है, liability of officers with respect to any offense made prior to, देखो क्या है, any offense made prior to merger and amalgamation etc. shall continue even after merger amalgamation. ये क्या बात हो यार. Then और दो सेक्शन है आई थिंक. सेक्शन 234, fast track mode of merger or amalgamation for certain companies. Fast track mode of merger amalgamation for certain companies. Merger amalgamation between two or more small companies. Merger and amalgamation between two or more small companies. देखो यहाँ पे तीन टाइप का बात हो रहा है. Merger amalgamation between two or more small companies, or between holding and its wholly owned subsidiary, or such other class of companies as may be prescribed. तो holding and subsidiary के केस में except the share held by nominees to ensure that number of members of the subsidiary not below the statutory limit. ये important नहीं है. तो आप लोग इतना याद रखो, two or more small companies, holding and its wholly owned subsidiary, and such other class of companies as may be prescribed. अभी यहाँ पे कौन कौन सा कंपनी प्रेस्क्राइब्ड है? स्टार्टअप एंड स्मॉल कंपनी. तो स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप कंपनी है प्राइवेट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट. मतलब स्टार्टअप वो भी प्राइवेट कंपनी होना चाहिए. स्टार्टअप वो भी प्राइवेट कंपनी होना चाहिए. एंड होल्डिंग सब्सिडियरी के केस में एक्सेप्ट द शेयर्स हेल्ड बाय नॉमिनीज टू एंश्योर दैट नंबर ऑफ मेंबर्स of subsidiary is not below the statutory limit. So merger and amalgamation between two or more small companies, holding and its wholly owned subsidiary, or such other class of companies as may be prescribed till date. Startup and small companies as prescribed. Startup and small companies must be private companies. तो यहाँ पे कुछ conditions है, ये conditions fulfill होने के बाद ही fast track mode में जा सकते हैं. क्या क्या है? Notice of the proposed scheme inviting objections shall be given to. तो ये जो proposed fast track merger है ना, इसका notice of the proposed fast track merger scheme inviting any objection shall be given to the registrar and official liquidator. Official liquidator कब? Where the company is in voluntary liquidation. Then any objection received are considered at general meeting. Any objection received are considered at general meeting and the scheme is approved by not less than 90% of total number of shares. यहाँ पे number of shares है. फास्ट ट्रैक के केस में not less than 90% of total number of shares होगा. Then each of the company shall file a declaration of solvency with the registrar. Declaration of solvency with the registrar file करना पड़ेगा. Then the scheme is approved by at least 9/10 value of creditors. उसके बाद the scheme should be approved by at least 9/10 value of creditors and notice of meeting shall be given to creditors. Notice of meeting shall be given to creditors at least 21 days prior along with the draft of the scheme. Important है. देखो कंडीशन क्या क्या है. नोटिस ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन शैल बी गिवन टू रजिस्टर एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर. ऑफिशियल लिक्विडेटर कब है? वेयर द कंपनी इज इन वॉलंटरी लिक्विडेशन. देन ऑब्जेक्शन रिसीव्ड आर कंसिडर्ड एट जनरल मीटिंग एंड द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय नॉट लेस देन 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. उसके बाद ईच ऑफ द कंपनी शैल फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी विद द रजिस्टर. देन द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय एट लीस्ट 9/10 वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स एंड द नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी गिवन टू क्रेडिटर्स एट लीस्ट 21 days prior and along with the draft of the scheme. तो
यहाँ पे देखो द कंपनी है, कंपनी ये स्कीम देगा रजिस्टर ऑफिशियल लिक्विडेटर को। अगर ये रजिस्टर ऑफिशियल लिक्विडेटर ने कोई ऑब्जेक्शन दिया, दूसरा केस है नो ऑब्जेक्शन, जहाँ पे ऑब्जेक्शन आया ही मे कम्युनिकेट द सेम इन राइटिंग, he may communicate the same in writing to central government within 30 days of such notice, and जहाँ पे no objection है central government shall register the scheme। उसके बाद if central government, देखो सबसे पहले तो कंपनी क्या होगा, ये जो स्कीम का नोटिस दे देगा रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को, ऑब्जेक्शन आया तो कम्युनिकेट टू सीजी इन राइटिंग विद इन 30 डेज, नो ऑब्जेक्शन सीजी विल रजिस्टर द स्कीम विद इन 30 डेज। उसके बाद इफ सीजी इज ऑफ द ओपिनियन, मतलब ये वाला केस में तो कोई बात ही नहीं है, दूसरा केस में जहाँ पे ऑब्जेक्शन है तो he may communicate the same in writing to CG in 30 days। Then if CG is of the opinion that the scheme is not in public interest, that the scheme is not in public interest or is defrauding creditors, if CG is of the opinion that the scheme is not in public interest or it is defrauding creditors, it may file an application to NCLT, it may file an application to NCLT within 60 days of receipt of the scheme। तो देखो पूरा प्रोसेस है, यहाँ से कंपनी शैल फाइल अ नोटिस टू रजिस्टर ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑब्जेक्शन नहीं है, बात खत्म, सीजी शैल रजिस्टर द स्कीम। ऑब्जेक्शन है, ही में कम्युनिकेट द सेम इन राइटिंग टू सीजी विद इन 30 डेज। इफ सीजी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्कीम इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, इट में फाइल एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी विद इन 60 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ द स्कीम। इफ ट्रिब्यूनल थिंक्स द स्कीम इज ओके और वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फाइल्ड, देखो इफ ट्रिब्यूनल थिंक्स दैट द स्कीम इज ओके और वेयर CG has not filed any application, it may approve the scheme। The order of tribunal confirming the scheme shall be communicated to register having jurisdiction। The order of tribunal confirming the scheme shall be communicated to the register having jurisdiction। Dissolution of transferor company, dissolution of transferor company without winding up, this is optional, the companies can also follow the route of, देखो ये जो दिस का क्या मतलब है, ये जो फास्ट ट्रैक मोड है ना, अभी ये दिस का मतलब है दिस फास्ट ट्रैक मोड। तो दिस फास्ट ट्रैक मोड इज ऑप्शनल टू द कंपनीज, द कंपनीज कैन ऑल्सो फॉलो द रूट ऑफ कंप्रोमाइज अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 230 टू 232। नेक्स्ट इज सेक्शन 234 में ही मर्जर अमेलगमेशन विद अ फॉरेन कंपनी। तो यहाँ पे दो केस है, फॉरेन कंपनी का मर्जर अमेलगमेशन हो रहा है विद एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी का हो रहा है विद फॉरेन कंपनी। जहाँ पे फॉरेन कंपनी विद इंडियन कंपनी है, आफ्टर आरबीआई अप्रूवल चाहिए एंड कंप्लाई विथ सेक्शन 230 टू 232, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेलिंग कंपनी इज फॉरेन और यहाँ पे सेलिंग कंपनी इज इंडियन कंपनी। तो देखो फॉरेन कंपनी विद इंडियन कंपनी मर्ज हो रहा है, तो सेलिंग कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी में मर्ज हो रहा है। यहाँ पे आफ्टर आरबीआई अप्रूवल चाहिए एंड कंप्लाई विद 230 टू 232। अभी जहाँ पे इंडियन कंपनी विद फॉरेन कंपनी, सेलिंग कंपनी इज इंडियन कंपनी, तो दोनों केस में प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई चाहिए एंड 230 टू 232 का कंप्लायंस चाहिए, तो दोनों केस में सेम है। ऊपर वाला केस में कंसिडरेशन, देखो ये जो सिर्फ ऊपर वाला केस में जहाँ पे सेलिंग कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी, तो यहाँ पे क्या है, इंडियन कंपनी, ये वाले केस में इंडियन कंपनी विल पे पीसी टू फॉरेन कंपनी, राइट, दिस इज अ केस। इसीलिए तो दो बाइफर्केशन है, कंडीशन तो दोनों में सेम है, आरबीआई अप्रूवल भी चाहिए, 230 टू 232 का वो भी चाहिए। तो जहाँ पे इंडियन कंपनी परचेस कंसिडरेशन दे रहा है फॉरेन कंपनी पे, इन दैट केस द कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स ऑफ फॉरेन कंपनी कैन बी गिवन इन कैश
और डिपॉजिटरी रिसिप्ट और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो कैसे दिया जा सकता है? इन कैश और डिपॉजिटरी रिसिप्ट और पार्टली इन कैश और पार्टली इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। गाइज, दिस पर्टिकुलर चैप्टर कम्स टू एन एंड एंड आई होप आप लोगों को ये पूरा डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। In case you guys are finding it helpful, then please share your feedback in the comment section. And आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा एंड स्पेशल पावर है, यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो एज टू स्टे कनेक्टेड, एंड ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। ओके गाइज, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो अपना होगा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, वो वाला जो चैप्टर है, दैट चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद दोस्तों।